morning, students. So today we are going to discuss about how to calculate the formula mass or molecular mass of a substance. A formula mass or a molecular mass is defined as the total weight of the individual atoms that are in that molecule. So I have given you questions on page number 40. Page 40. We'll discuss the question number 1, that is discussed in the today's class. The question number 1 is about how to calculate the mass of H2. आपको अगर कोई भी मास कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस एटम का मास कितना है. फॉर एग्जांपल आई नो द मास ऑफ एटम H इज़ 1U. ठीक है ना. और अगर आपको ये मासेस देखने हैं तो यू कैन स्विच ऑन टू पेज नंबर 35. On page number 35 there is a table 3.2. उस 3.2 टेबल में आप देखोगे उस सबके मास दिए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपके सब्सटेंस है. हाइड्रोजन कार्बन के मास दिए हुए हैं. ठीक है ना. हाइड्रोजन का मास 1U है. हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल? देयर आर 2 हाइड्रोजन आइटम्स इन द मॉलिक्यूल. आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड आंसर विल गेट इज 2U. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है O2. ठीक है. नेक्स्ट मैं एक साथ सारे लिख लेता हूँ, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. Cl2 सबका मास लिखेंगे. Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4. Next is NH3 and last one is CH3OH. These are all the masses that we have discussed in today's class and how to calculate these mass. Okay, it is really easy to calculate the mass of a substance. It's just like you are having a packet or a bag in which you are carrying your vegetables. For example, in this bag you have 1 kg tomato. ठीक है ना. 3 packs of wheat. ठीक है ना. each of 1 kg and 3 kgs potatoes, 1 kg onion. If I am going to ask you what is the mass of this bag, what you will do is you will add 1 kg onion plus 1 kg tomato, ठीक है ना, plus 3 kg potatoes plus 3 into 1 kg of wheat. That means because we have 3 packets 1 kg. इन सब के कितने पैकेट्स थे? एक ही पैकेट था. एक 3 kg का एक पैकेट था, एक 1 kg का एक पैकेट था, एक 1 kg का पैकेट था. यहाँ 3 पैकेट्स थे. कितने? 1 kg के. टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 plus 1 plus 3 plus 3, that is 6 and 2 8. So total mass will be 8 kg. Similarly, in this molecule there are 2 oxygen atoms and we have to calculate the mass of this molecule. So what we'll do is we'll write the weight of one atom of oxygen, that is 16U, and multiply it by 2, that is 32U. The mass of hydrogen oxygen, this is already given in page number 335, table 3.2. तो मैं एक बार और मासेस यहाँ लिख देता हूँ. H का मास कितना है? 1U है आपके पास. ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा? आपके पास 16U है. क्लोरीन का मास है आपका 35.5U, गिवन है वहाँ पर. ठीक है ना. हाइड्रोजन का मास हमने लिख लिया. कार्बन का मास कितना है बेटा? 12U. ठीक है ना. ये सारे मासेस मैंने लिख दिए जो भी अवेलेबल है. और यहाँ पर नाइट्रोजन का मास पूछ रखा है. नाइट्रोजन इज 14. ठीक है ना. सबके मैंने मासेस बता दिए. अब इनको यूज़ करके आप यहाँ पर मासेस निकाल सकते हो. तो अगेन कितना? क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5U. हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर? देयर आर 2 एटम्स. into 2, आंसर विल बी 71.0. कैसे आएगा 71.0? देखेंगे यहाँ पर 35.5. इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे? 2 से. 2 5 ज़ा 10, 0 1 ऊपर गया. 5 2 ज़ा 10, 0 सॉरी 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 ऊपर गया. 3 2 ज़ा 6 और 1 7. कितना आ गया बेटा? 71.0. पॉइंट यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया. तो दिस इज हाउ 71.0 इज अवेलेबल. नेक्स्ट इज मास ऑफ कार्बन. कार्बन का मास कितना है बेटा? कार्बन का मास है 12U. ठीक है ना. दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 1, देन
Next is oxygen. Here oxygen is available, then we will write 16 U for oxygen. How many atoms of oxygen is there? 2 multiplied by 2. Answer will be 12 plus 32, that is 44U. Okay, very easy. Next, again we know the mass of carbon is 12U. There is only one atom, plus there are 4 hydrogen atom. Hydrogen atom mass is 1U, that is 4. The answer will be 12 plus 4, that is 16U. Okay. Next question. Carbon has 12, mass of 12. Number of carbon atoms is 2. Hydrogen has 1U mass. Number of atoms of hydrogen is 6. Total is 24 plus 6, that is 30U. Next question we will see this. There are again 2 carbons. Mass of carbon is 12U into 2, plus again there are 4 hydrogen. Mass of hydrogen is 1U. Answer will be 24 plus 4, that is 28U. Next, mass of nitrogen यहाँ पर लिखा हुआ कितना बेटा? 14U. There are only one nitrogen, that is 1. Then 1U is the mass of your hydrogen. There are 3 hydrogens. Total answer will be 14 plus 3, that is 17U. Next question. Carbon is 12U into 1 plus 1U into 3 plus 16U into 1 प्लस 1U इंटू 1. ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12U, और देख लेते हैं हाइड्रोजन टोटल 3 और प्लस 1 4 है, तो एक साथ 4 भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आंसर क्या देगा? 12 प्लस 3 1 3 प्लस 16 1 16 प्लस 1 1 1. प्लस कर लेंगे 3 और 1 4, 16 और 4 20 और 10, तो टोटल आगे कितना आंसर आ गया यहाँ पर? 32. 3 प्लस 1 4, 16 4 20, 20 और 12 32. आगे लिख देंगे U. U लिखना नहीं बोलेंगे बेटा. U इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट, जो कि ये बताता है कि हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कितना है. क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो छोटा साइज़ के होने की वजह से उनका मास बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि हमें किसी का भी मास कैसे कैलकुलेट करना है. कोई भी हमें अगर एलिमेंट दिया गया, हम इजीली कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया, हम उसका इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मास को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें आगे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले हमें क्या मास कैलकुलेशन आना चाहिए. तो मास कैलकुलेशन फिर से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक इस एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक CaCl2. ओके, व्हाट इज़ द मास ऑफ कैल्शियम? What is the mass of calcium? कैल्शियम का मास होता है बेटा 40. कितना होता है बेटा? 40. There are how many calcium? Only one calcium is there. So we will write just 40 into 1. 40U into 1 is the mass of this calcium. Then there is chlorine. Chlorine का मास होता है 35.5. और कितने क्लोरीन अवेलेबल है बेटा? 2 क्लोरीन्स आर अवेलेबल. What we'll do is we'll do this 40U प्लस हमें क्लोरीन का मास हमने अभी निकाला था 2 क्लोरीन का मास 71 आया. Total answer will come out to be 111U. This is the mass of your CaCl2. Similarly, if there are more number of atoms, CaSO4. यहाँ पर हमारे सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का मास you will be knowing, it is 32. इसका मास कितना था? 40 था. ठीक है ना, तो 40U 1 है इंटू 1 प्लस 32 इंटू कितना 1. नेक्स्ट इज 16 इंटू 4. वैल्यूज़ लिखेंगे 40 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64. वी विल कैलकुलेट द फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर विल बी 6 4 to 6 और 6 4 10 और 3 30 136U. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैंने क्या आपको बताया था, जैसे इस बैग में मैंने सबके मास को ऐड किया था, ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल भी क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज़ अ बैग. इस बैग में जितनी भी चीज़ें हैं, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, सबका मास मैंने प्लस किया आपस में. कैल्शियम का मास लिखा 40, उसको 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई एक नंबर का आइटम है. सल्फर का फिर 32 मास लिखा, और क्योंकि एक आइटम था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया. ऑक्सीजन का मास लिखा 16, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया. फाइनल आंसर्स लिखे और यहाँ पर ऐड कर देते.
यू शुड बी नोइंग कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है वो किस ऑर्डर में करते हैं। बॉड मास अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो अबाउट बॉड मास, प्लीज़ स्टडी अबाउट इट, ठीक है ना। क्या कहता है बॉड मास? बॉड मास ये कहता है कि हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, पहले ब्रैकेट का देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये ऑर्डर रहता है। तो अगर इस इक्वेशन में कहीं पहले मल्टीप्लाई लिखा हुआ तो पहले मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन कर लेंगे, प्लस बाद में करेंगे। तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में लगा था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा, उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे। इसलिए इन दोनों के प्लस करने के, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आई उनको मैंने ऐड करके यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे और इसके साथ आपका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन completely do this. You have to write all these questions in your fair copy, ठीक है ना। I have already discussed question number 1, 2, 3, 4 of previous पेज नंबर 39, ठीक है ना। अगर उसमें से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, यू कैन आस्क मी ऑन दिस वीडियो ऑन द ग्रुप ऑल्सो, एंड यू ऑल नो कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट कमिंग टू स्कूल। Okay, the students who are not coming to school, they can view this video and complete their work till this part. Okay, and you should complete your work. You should be available with whole your work completed when you come to the school. ठीक है ना। तो आई एक्सपेक्ट यू कि आपने अब ये काम कर लिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्लास में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही हुआ था तो हम यहीं तक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यू ऑल विल बी रेडी विद द सेकंड क्वेश्चन। आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ट्राई करके आंसर निकालेंगे और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड प्लीज़ डू योर वर्क। जो आपको बोला गया आप कॉपी में करें, ठीक है ना। अटेम्प्ट करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। जो भी नहीं आएगा वो आप आंसर मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन में सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो दे रखे हैं, साथ साथ उन कंपाउंड में जो भी आपके आइटम्स यूज़ हुए हैं उन सबके मासेस भी दे रखे हैं। सब कुछ ऑलरेडी हमारी बुक में अवेलेबल है, क्वेश्चन में सब चीज़ अवेलेबल है। क्वेश्चन को देखो और आंसर निकालो, ठीक है ना। जैसे ये निकाल रखे हैं ऐसे ही वहाँ भी होगा। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर सारे मार्क्स लिख दिए, वहाँ पर भी सारे मार्क्स सामने लिखे हुए हैं। उन मार्क्स को यूज़ करें और अपना आंसर आप निकालें, ठीक है ना। इट इज़ एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क? नो, इट इज़ नन ऑफ योर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के, अगर रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो वैसे मैं डिस्कस कर लूँगा। ज़्यादा तो है नहीं, 3 ही फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों के मार्क्स निकालेंगे। जैसे हमने इसके मार्क्स निकाल रखे हैं ऐसे उनका भी मार्क्स निकालना है और सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।